Hello, welcome to the student for the new lecture which I am taking. This the chapter is deflection in beams. This is a very important topic, and this is the seventh lecture, I think, lecture number 7. So आज जो दो प्रॉब्लम्स आपको करने जा रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग द टू प्रॉब्लम्स. One is the cantilever beam with the uniformly distributed load, and the second one is simply supported beam unsymmetrical loading. Right, these two problems are very important one. Their concept which we have to understood, that is you have to keen yourself, you have to pay attention towards this lecture so that you can properly understand the things. So this is the very important topic, these two problems which I am taking up today in this lecture. So I think that everybody that should be attentive to give 100% and to understand what I am just delivering here, right? So the problem is, so that is cantilever beam with UDL. This is the first problem. Cantilever beam with the UDL. So what we have to find out here, we have to find the maximum deflection as well as the maximum slope in this case, and flexural rigidity, that is given as 10 raised to power 4. This is your problem, that the cantilever beam with the uniformly distributed load whose flexural rigidity is 10 raised to power 4, and but we have to find out the maximum deflection as well as the maximum slope. This is our problem. तो ये हम ड्रा कर लेते हैं. This is your cantilever beam, you can say. So this is your cantilever beam. Cantilever means, beam means one end is fixed and the other end is free, and this cantilever beam is having a uniformly distributed load. तो इसके ऊपर क्या है, एक uniformly distributed load है, just like this. So uniformly distributed load is acting on the beam, and we have to find out the maximum deflection as well as the so this is your UDL. जी आपका क्या है, UDL, that is uniformly distributed load on the beam, cantilever beam. Yes. So the question is, we have to find the maximum slope and the maximum deflection. This is my first problem, cantilever beam with UDL load, and we have to find the maximum deflection as well as the maximum slope in this case, right? तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो हम करें, फर्स्ट क्या है, ड्रा द बेंडिंग मोमेंट. फर्स्ट स्टेप है ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो इसकी लेंथ हम लिख लेते हैं, द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर
the length of the beam is given, right? Length is the L, and the load per unit length, that is W. W is the, you can say L is the length of the beam, small w, load per unit length. So these two parameters are given. So हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है. सपोज दिस इज योर एंड ए एंड दिस इज योर एंड बी. ये आपका एंड ए है एंड बी, राइट. तो हमें वी हैव टू ड्रा, पहले हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर लेंगे. तो बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से आएगा इसका, राइट. सो मूवमेंट एट पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ये आपका ए है और ये आपका बी है, राइट. मूवमेंट एट पॉइंट ए इज जीरो. अगर मैं मूवमेंट एट पॉइंट बी निकालूं, इधर देख लिए, मूवमेंट एट ए, एम ए मैं पहले लिख लेता हूं जीरो, और अगर एम बी जो है आपका, एम बी कितना आएगा, द लोड इज यूडीएल, अंडरस्टैंड दिस, लोड इज यूडीएल. तो टोटल लोड कितना होगा, W इंटू एल, वेयर इट विल एक्ट सपोज एट द सेंटर एट दिस पॉइंट, राइट. तो जहां से लेके जहां तक लेंथ कितना होगा, L/2. तो हमारा मोमेंट क्या आएगा, W इंटू एल, जो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस है, बिकॉज द यूडीएल दैट विल एक्ट एट द सेंटर में, सेंटर ऑफ द बीम, दैट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द बीम. तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, W इंटू L/2, राइट. यू अंडरस्टैंड दिस. So this is W L square by 2. This is the bending moment at point B, right? This is the bending moment at point B. So suppose I will take this is the point, right? तो UDL जब लोड होगा, जैसे मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको समझाया था, व्हेन द लोड इज यूडीएल, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी दैट इज पैराबोलिक. यू अंडरस्टैंड दिस. सो लोड हियर इज यूडीएल, जो हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूडीएल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, यूडीएल होना चाहिए, राइट. सो देखिए फ्रॉम लेफ्ट साइड के ऊपर, फ्रॉम लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है ये, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट. जो हमारा अगर लेफ्ट की बात करें तो क्या है, लोड इज एक्टिंग, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, लोड इज एक्टिंग हियर क्लॉकवाइज. तो ये आपका जहां पे पॉइंट आ जाएगा, और जो आपका जहां से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेगी, दिस इज लाइक दिस. सो दिस इज यू कैन से दिस इज योर, राइट. तो इसको आप मिला दीजिए, right. So that is W L square by 2. You understand this? So this is your bending moment diagram. Basically the bending moment diagram क्या है, ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज द पैराबोला. यू अंडरस्टैंड दिस. अब देखिए, यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्लोप एंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम स्लोप, थीटा मैक्सिमम एंड y मैक्सिमम, राइट. अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा मैक्सिमम की बात करूं, राइट, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये लिख दीजिए बेंडिंग मोमेंट
डायग्राम। तो थीटा मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मोर्स का फर्स्ट थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। और you know that the theta at point B this is equal to 0 because this is the fixed end and fixed end के ऊपर जो स्लोप होगा वो 0 होगा। So we need 2 points for calculating the slope of 1 point, right? हमें 2 पॉइंट चाहिए जिससे हम एक की स्लोप हमारे पास नोन होगी और दूसरी की स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट थ्योरम का यूज करें, फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोर, फर्स्ट थ्योरम, वो क्या थी आपकी, थीटा ए माइनस थीटा बी, थीटा ए माइनस थीटा बी, राइट? दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी अपॉन ई आई। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज माई फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोर्स, राइट? तो जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ थीटा बी इज 0, तो थीटा ए जो फ्री एंड के ऊपर होगा वो क्या होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा। आई कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, बट द प्रॉब्लम इज वेयर यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज एरिया ए बी, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो यू नो दिस इज ए पैराबोलिक टाइप ऑफ द एरिया, जहां पे क्या है, ये पैराबोला है। तो इस टाइप का जो एरिया है, दिस इज एक्चुअली समटाइम्स नो डाउट दे आर हैविंग सम डिफरेंट फार्मूलाज टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ एरिया, बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस, राइट? सो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम, दिस इज द बेटर वे, जो एप्रोप्रिएट मेथड है टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर द एरिया इज शेप ऑफ पैराबोलिक। जो एरिया हमें कैलकुलेट चाहिए जहां पे, उसकी जो शेप है एरिया की, दैट इज अ पैराबोलिक शेप। सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी बेटर कैलकुलेटेड बाय द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उस क्यों करते हैं? बिकॉज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड that is the best appropriate method for such type of a problem. You understand this? But here I am just taking this problem by the moment area method. You understand this? अगर जर्नल में आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, तो अगर उसमें नहीं लिखा है कि you calculate this problem by the moment area method, you can calculate this. तो better way है, जो appropriate way है to calculate such type of problem, that is the strain energy method. You can use the strain energy method and then you can calculate this problem very easily. But in case of moment area method, what happens, because we are not knowing, no doubt there are the different methods to calculate the area here, but sometimes we forget the formula. So in such case, either you remember the formula of the area or you have to डू द प्रोसेस। हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे हमें इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? इफ आई एम यूजिंग दिस मोमेंट एरिया मेथड, ये प्रॉब्लम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया? प्रॉब्लम क्या थी? योर प्रॉब्लम इज कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड एंड फ्लेक्चुअल रिजिडिटी ऑफ द बीम दैट इज गिवन एज EI। फ्लेक्चुअल रिजिडिटी बीम की क्या थी? EI, that is given in the problem. So what we have to calculate? You have to calculate the maximum slope as well as the maximum deflection. This thing you have to calculate. So अगर एरिया का जहां पे प्रॉब्लम ना हो तो the problem is very easy because there are 2 points on this beam, the point A and point B, and you know that in case of cantilever beam, maximum slope हमारी कहां पे होगी? फ्री एंड के ऊपर होगी, और जो दूसरा एंड होगा इसका वो क्या होगा? फिक्स होगा। जो फिक्स एंड होगा वहां पे क्या होगा? स्लोप आपका 0 होगा। तो हम डायरेक्टली ये फर्स्ट थ्योरम का वी विल यूज द मोर्स फर्स्ट थ्योरम एंड वी कैन कैलकुलेट दिस। व्हाट प्रॉब्लम इज लाइंग हियर? टू कैलकुलेट द एरिया AB, बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप, द डिफरेंस ऑफ द slopes of the 2 points, that is equal to area AB upon EI. You understand? So for calculating the slope, I need the area AB. अब एरिया AB जो है, दिस एरिया जो आपने बेंडिंग मोमेंट ड्रा किया है,
हमें क्या चाहिए, वी नीड द एरिया ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए बी, राइट। सो द बेंडिंग मोमेंट जो है दिस इज ए पैराबोलिक, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज आल्सो पैराबोलिक, यू अंडरस्टैंड। So such type of problem, if we will prefer to solve this problem by the strain energy method, reason is that it is sometimes difficult to remember the formula to calculate the parabolic area. It is very difficult to calculate that. So अगर हम ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आती है एंड दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट दिस प्रॉब्लम दैट यू शुड कैलकुलेट बाय द मोमेंट एरिया मेथड, देन स्ट्रेट वे यू यूज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप क्या करेंगे, स्ट्रेट वे स्ट्रेन एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करेंगे एंड देन यू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप एज वेल एज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बट हियर आई एम कैलकुलेटिंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द मोमेंट एरिया मेथड, क्योंकि मैं मोमेंट एरिया मेथड का लेक्चर्स दे रहा हूं तो मैं इस प्रॉब्लम को क्या करूंगा, मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एरिया ए बी, और यही इसका एक कंसेप्ट है जो कि आपको एक बड़े ध्यान से समझना है कि दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ए बी। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम, only the problem is to calculate the area AB, and for calculating the area AB we are using some process method, and that method you have to understand. You understand this, right? So देखिए आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। अच्छा, तो वी विल ड्रा द इलास्टिक कर्व आल्सो, इसकी हम इलास्टिक कर्व भी ड्रा कर लेंगे। तो इसकी इलास्टिक कर्व क्या आएगी, राइट? अगर मैं इलास्टिक कर्व की बात करूं, ये आपकी इलास्टिक कर्व आएगी इसकी, दिस इज द इलास्टिक कर्व, एंड इफ आई विल, जो डिविएशन होगी पॉइंट ए की इस पॉइंट के ऊपर, ये क्या होगी, पॉइंट ए की डिविएशन ऑन द इलास्टिक कर्व, राइट? राइट, तो जे होगी, और जे आप डिस्टेंस जहां पे इस पॉइंट के ऊपर हो, क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी इस पॉइंट के ऊपर होगी और हमारी मैक्सिमम स्लोप भी इस पॉइंट के ऊपर होगी, टी ए बी। यू अंडरस्टैंड? सो this is your UDL. Let us start the problem. This is your UDL, and the UDL load is acting on the cantilever beam. This is the elastic curve, right? और J point A जो है, point A है there. So from here, इस point की जो deviation on the elastic curve होगी, so point A की deviation on the elastic curve क्या है, that is equal to TAB, and this is the slope of the cantilever beam. You understand this? So ये आपकी बेंडिंग मोमेंट भी मैंने ड्रा करके बता दी और ये भी बता दी, राइट? सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम स्लोप, राइट? सो मैक्सिमम स्लोप, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि द स्लोप एट पॉइंट बी, this is equal to 0 because the end of this cantilever beam is fixed here at point B. The beam is fixed, and when the beam is fixed, slope is 0. तो मैक्सिमम थीटा बी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए कहाँ पे होगी, द मैक्सिमम स्लोप इज एट पॉइंट ए। यू अंडरस्टैंड दिस? मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगी, एट पॉइंट ए। तो मोर्स फर्स्ट थ्योरम, Moore's first theorem क्या कहती थी, the slope, the difference of the slope between the 2 points, this is equal to the difference of the slope, that is theta A minus theta B. This is equal to area AB of bending moment। लिख लेता हूं,
bending moment diagram divided by EI. This is the more first theorem. You understand this? I am calculating this problem by using the moment area method. You understand? मैं इस प्रॉब्लम को मोमेंट एरिया मेथड इसको यूज करके आई विल कैलकुलेट. सो जैसे आपको बताया कि थीटा बी द स्लोप एट द फिक्स एंड दैट इज ऑलवेज जीरो. यू रिमेंबर दिस पॉइंट. सो देयरफॉर थीटा ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एरिया ए बी अपॉन ई आई. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ जहां तक इज ऑल राइट, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, जहां तक आपका ठीक. अब आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द एरिया. आपने क्या करना है? आपने एक एरिया ड्रा करना है. आपने कंप्लीट एरिया ए बी को कैलकुलेट करना है. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ए बी. बट द डायग्राम, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसका शेप क्या है? पैराबोलिक है, तो एरिया भी इसका पैराबोलिक होगा. तो हमारे पास सीधे तरीके से इसको कैलकुलेट करना, जैसे हम पीछे जो प्रॉब्लम्स की थी, मोस्टली जो हमारा एरिया था वो रेक्टेंगल शेप में था. आइदर यू गॉट द एरिया द ट्रायंगल शेप. सो दैट इज इजी टू कैलकुलेट. That is easy to calculate. What here I am getting the parabolic shape. So in this case, if you want to calculate the entire area AB, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक small strip ले लेंगे. Suppose I will take the small strip here. This is a small strip. I have taken the small strip. dx, ये तो बहुत है, ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल टाइप का होगा. dx, राइट? स्मॉल स्ट्रिप जिसका लेंथ क्या है? dx है, एंड दैट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a. दैट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a. नाउ मैं इसका डिस्टेंस x फ्रॉम b भी लिख सकता था. वाई आई हैव टेकन द डिस्टेंस x फ्रॉम a? वाई आई हैव नॉट टेकन द डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट b? दैट इज द क्वेश्चन. रीजन इज दैट आई एम टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट. आई एम टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम पॉइंट a. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड. So the distance of this x from the strip, that will be taken from the point A only. You understand this point? तो ये x जो distance मैंने लिया point A से, वो हमें point A से ही लेना होगा, ना कि हमें point B से लेना होगा. You understand? जहां तक this is clear? Now we will calculate the area first small strip. ठीक है? तो आप लिख लिए area of small strip. हमारा एरिया स्मॉल स्ट्रिप का क्या होगा? dx इसका लेंथ है और j जो आपकी हाइट है, ये एरिया होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है? हमें इसकी हाइट निकालनी है. तो हाइट क्या है? हाइट इज द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट. हाइट क्या है? इस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट, वो आपकी हाइट है. तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि जो आपका हाइट है, क्योंकि बिकॉज आई नीड द लेंथ इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? बेंडिंग मोमेंट हमें इस पॉइंट के ऊपर चाहिए. जो W लोड है, दैट इज पर यूनिट लेंथ. यू अंडरस्टैंड दिस? W इज द लोड दैट इज पर यूनिट लेंथ इन केस ऑफ UDL लोड. तो ये UDL है, बी, इस बीम के ऊपर कौन सा लोड एक्ट करेगा? टोटल बीम के ऊपर फ्रॉम A to B. The load is UDL. It means that from this point to this point, the load is also UDL, and W is the load per unit length. तो अगर जहां से लेके जहां तक लेंथ आपकी x है, तो लोड कितना हो जाएगा आपका? लोड आपका हो जाएगा W इंटू एक्स. राइट? लोड कितना हो जाएगा? W इंटू एक्स. अब ये लोड कहां पे एक्ट करेगा? UDL लोड है, तो दैट विल एक्ट एट द सेंटर
मीन्स एट जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा वो x/2 के ऊपर एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो हाइट क्या है? हाइट है आपका बेंडिंग मोमेंट। हाइट क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट। तो लोड आपका है W into x/2। वेयर इज इट इज एक्टिंग? इट इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द स्टिप? दैट इज x/2। तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा इसका? W into x into x/2। You understand? This is clear to you? This is clear to you? Again I will repeat it. I have to, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है स्ट्रिप का। फर्स्ट आई विल टेक द एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप एंड देन आई विल इंटीग्रेट इट। मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिप की लेंथ है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लेंथ इसकी ऑलरेडी आपने ली है। लेंथ आपकी थी इसकी स्ट्रिप की dx। यू अंडरस्टैंड? और लेंथ हमारी dx है, मींस इस तरीके से दिस इज योर dx। आई नीड द हाइट, दिस हाइट, तभी इसका हम एरिया स्मॉल स्ट्रिप का फाइंड आउट करेंगे। तो हाइट इज व्हाट? हाइट इज द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट। अब हमें इसका मतलब है, हमें इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, सो द बेंडिंग मोमेंट व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दैट इज द सेम, द बेंडिंग मोमेंट मींस दैट इज द सेम हाइट, वही हाइट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा? जहां से लेके जहां तक लोड कितना होगा? W into x, where it is acting? It is acting at the center, that is x/2. And then what is the bending moment? W into x into x/2. So this is W x square y2. तो ये आपका आ गया, इसको मिटा देते हैं। So this is W x square y2. You understand this? ये हाइट हमारी आ गई। तो एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? दैट इज W x square y2 into dx. Is there any problem? Area of the small strip W x square y2 into dx. तो स्मॉल स्ट्रिप का आपका एरिया आ गया, दिस इज द एरिया। अब मैं कंप्लीट एरिया आई हैव टू फाइंड आउट ए बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंप्लीट एरिया ए बी क्या होगा? ये जो स्मॉल स्ट्रिप का मैंने ये एरिया लिया है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 0 से L, बिकॉज L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। L क्या है? बीम की लेंथ है। तो 0 से L में इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट करता हूं। ये आएगा आपका W x square y2 into dx। यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो अगर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या आएगा? ये W L Q y6। यू अंडरस्टैंड दिस? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आई थिंक इतना सा डायरेक्ट करना चाहिए। यह आएगा आपका इंटीग्रेशन करने के बाद W x Q y6। तो इंटीग्रेट है फ्रॉम 0 टू L, L पुट करेंगे यहां पे, तो W L Q y6। तो ये आपका आ गया कंप्लीट एरिया ए बी। यू अंडरस्टैंड दिस? अब हमारा इसको मिटा देते हैं, इतना सा पोर्शन। आई थिंक यू डोंट नीड इट। दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज क्लियर? फर्स्ट what I have done, first I have calculated the area of the small strip, and then by integrating the area of the small strip from the limit 0 to L, I have calculated whole area AB, and that is equal to WL cube by 6. You understand this? तो अब इसमें आ जाते हैं। तो जहां पे क्या था? थीटा ए, दिस इज इक्वल टू एरिया ए भी हमने अभी कैलकुलेट किया, WL cube by 6 into EI. So this is your maximum slope. Maximum slope in case of cantilever beam when there is a uniformly distributed load acting on the beam. So theta A, this is equal to theta maximum, क्योंकि हमारा जो स्लोप हमारा मैक्सिमम होगा दैट इज अ फ्री एंड, तो हमारा ये ही मैक्सिमम स्लोप होगा जो हमने कैलकुलेट किया है एट पॉइंट ए, थीटा ए, दिस इज द स्लोप। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये आप फार्मूला भी इसका रिमेंबर कर सकते हैं।
in case of only UDL load. If UDL load is acting on the cantilever beam, then theta A, maximum slope, this is equal to WLQ upon 6EI. You understand? अब आ जाइए इसमें, ये पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हमारा अगला पार्ट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, बट वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। So we have to calculate maximum deflection. You understand? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, दिस इज योर इलास्टिक कर्व, और सपोज इफ अगर मैं इस इलास्टिक कर्व के ऊपर ये टेंजेंट ड्रा कर लो आप, सो दिस इज द टेंजेंट ऑन द इलास्टिक कर्व। बीम के ऊपर ही टेंजेंट होगा, जो आपकी बीम है, दिस इज योर टेंजेंट ऑन द इलास्टिक कर्व, एंड जो डिस्टेंस पॉइंट ए जहां से जहां तक जो डिविएशन होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका व्हाट इज दैट, दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिस इज इक्वल टू TAV, right? Because the deflection at the point B is 0, but at the free end there is a maximum deflection, and that is denoted by this, क्योंकि ये I have drawn the tangent and the point A जो है, if I will draw the deflection from point A to on the elastic curve, so its distance is TAB। इलास्टिक कर्व के ऊपर जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, TAB है, that is the deflection, that is the deflection of the beam। You understand? तो ये आपका आ गया बाई AB, TAB। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, using Moore's second theorem। तो मोर की जो सेकंड थ्योरम थी उसने व्हाट ही सेड, so maximum deflection at free end in case of cantilever beam, ठीक है। So this is equal to by maximum this is equal to TAV, this is equal to area AB ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये मैंने मिटा दिया, बेंडिंग मोमेंट ही मिटा दिया मैंने, सॉरी।
सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैंने मिटा दिया था गलती से, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो यस, राइट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। जे लेंथ जो थी, इस लेंथ, ये इसकी लेंथ थी, दैट लेंथ इज इक्वल टू एल, और जे जो आपकी मैंने लेंथ ली है, दैट लेंथ इज योर एक्स। यू अंडरस्टैंड? चलो, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब देखिए, हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एरिया ए बी इंटू एक्स ए बार। देखिए, टेंजेंट, वी आर ड्राइंग द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट बी, तो हम एक्स ए बार लेंगे, बुक्स किससे ले, किस साइड से लेंगे, अनदर पॉइंट, मींस एट द पॉइंट ए से, अपॉन ई आई। यू अंडरस्टैंड दिस? अब जहां पर भी हमें वही एरिया ए बी निकालना है, तो एरिया ए बी हमारा क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ए बी इन दिस केस? ये आपका एरिया ए बी आएगा, दैट इज, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या आया था, क्या आया था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप, राइट? तो टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया ए वी, वही सेम, क्या करेंगे, 0 से एल, दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, राइट? अब देखिए एक्स ए बार क्या होगा, हम जहां पे पहले एक्स ए बार निकाल देते हैं। सो व्हाट इज द एक्स ए बार? दिस पॉइंट इज योर सेंट्राइड। इफ आई विल से दिस इज योर सेंट्राइड, ये क्या है, ये आपका सेंट्राइड, दिस पॉइंट इज सेंट्राइड। तो एक्स ए बार होगा मेरा इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका एक्स ए बार होगा, और दिस इज इक्वल टू, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना, एक्स है, इस स्ट्रिप का टोटल लेंथ कितना, डी एक्स है। तो सी जी कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस डी एक्स बाई 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द स्ट्रिप, जहां से लेना है ना हमने, दिस इज इक्वल टू एक्स ए बार, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स बाई 2। यू अंडरस्टैंड? तो देखिए dx तो ऑलरेडी वेरी स्मॉल स्ट्रिप है। व्हाट इज dx? dx इज ए वेरी स्मॉल स्ट्रिप, ऑलरेडी इट इज वेरी स्मॉल। तो dx बाई 2 ये जो होल टर्म होगी, दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल, ये तो उससे भी ज्यादा स्मॉल होगी। तो क्या करेंगे हम, वी विल इग्नोर दिस, हम इसको इग्नोर करेंगे, मींस नेग्लेक्ट कर देंगे, वी विल इग्नोर दिस टर्म, राइट? तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, देयरफॉर अगर मैं एक्स ए बार की बात करूं, देयरफॉर एक्स ए बार, इसको मैं एक्स ले लूं, कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू अंडरस्टैंड दिस? क्या किया मैंने, एक्स ए बार क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइड ऑफ द स्ट्रिप टू द पॉइंट ए। तो सेंट्राइड कहां पे होगा स्ट्रिप का, सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, और स्ट्रिप का जो लेंथ है दैट इज डी एक्स। इट मींस ये जो डिस्टेंस होगा जहां से लेके जहां तक, दिस इज डी एक्स बाई 2, और आगे वाला डिस्टेंस आपका एक्स है। सो देयरफॉर एक्स ए बार, दिस इज एक्स प्लस डी एक्स बाई 2, बट डी एक्स इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। आई एम अज्यूमिंग द स्ट्रिप इज वेरी स्मॉल। सो व्हेन द dx, the length of the strip is very small, it means that dx by 2, that is also very small, and we can ignore that, we can neglect that. So I have neglected the term dx by 2, therefore x a bar, this is equal to x. You understand this? X a bar, this is equal to x. X a bar मेरा क्या आया था,
जहां पे x प्लस डी एक्स बाई टू, राइट, एंड जे मैंने इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट करो, देयरफॉर एक्स ए बार दिस इज इक्वल टू एक्स जे मैंने, राइट। आप इसमें पुट कर दीजिए आप, तो आप देयरफॉर वाई मैक्स क्या हो गया, वो था एरिया, लिख लेता हूं मैं, एरिया ए वी इंटू एक्स ए बार अपॉन ई आई, दिस इज, तो ये आपका हो गया 0 to L डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स इंटू व्हाट इज एक्स ए बार, दैट इज एक्स, राइट, अपॉन ई आई। यू अंडरस्टैंड दिस? So this is therefore y max, this is equal to, एक स्टेप और करना है, कर लीजिए, w x क्यूब बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, यस, यू अंडरस्टैंड? तो ये क्या आएगा, 0 to L, इंटीग्रेशन क्या है 0 to L, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसको कर लीजिए, ये कितना आएगा, जाएगा डब्ल्यू एल 4 अपॉन 8 ई आई। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गया ये? देखिए एक्स क्यूब का इंटीग्रेट करना है मुझे, तो ये आ गया x4/4, तो x4 डब्ल्यू x4/4, ये स्टेप अगर कहते हैं तो मैं लिख देता हूं, w आएगा wx4/2 इंटू 4 इंटू ई आई, राइट, 0 to L, तो L की वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो ये आएगा WL4 8EI। सो दिस इज योर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सो दिस इज योर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन दिस केस। तो ये आपका प्रॉब्लम था इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम when it is subjected to the UDL load, and in that case we have to calculate the maximum deflection as well as the maximum slope. So this is the way. We cannot use the formula for calculating the area of this parabolic area which I am getting here in case of bending moment diagram. So what I have to do, I have to take the small strip in that area, and first I have to calculate the area of the small strip and then integrate that area of the strip within the limit of 0 to जो भी लेंथ आपको दिया होगा उस लेंथ के बीच में उसको क्या करें आप, इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये सारा एरिया, इसका कंप्लीट एरिया आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी इन पैराबोलिक शेप आपको मिल जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर पैराबोलिक शेप है आपके पास डायग्राम की, तो उसका आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसका यही प्रोसीजर है कि क्या करें, एक आप स्मॉल स्ट्रिप ले लें और स्ट्रिप का फर्स्ट कैलकुलेट करें एरिया, और फिर उसको इंटीग्रेट करें जो उसका लेंथ दिया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो जब आपके पास एरिया मिल गया तो आगे तो प्रॉब्लम इज वेरी इजी, बाकी तो सेम प्रोसीजर है, सेम थिंग है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस हियर, बट ओनली द डिफरेंस दैट व्हेन यू आर हैविंग द प्रॉब्लम लाइक दिस, ये कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल है, जब कई दफा क्या होगा कि यूडीएल जो है, सपोज करो ये यूडीएल आधा है जहां तक है, और ये इसके बाद आपका ये पॉइंट लोड है, तो ये इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेबली वी विल डू इट विद द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। यू अंडरस्टैंड? तो आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसकी करते हैं, जो नेक्स्ट होगी अनसिमेट्रिकल लोडिंग।
तो सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ढेरों सारे कंसेप्ट आते हैं, वो आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। क्या प्रॉब्लम है? फॉर द अनसिमेट्रिकल लोडिंग, राइट, फ्लेक्चरल rigidity of beam is 10⁴ m4 and find, क्या फाइंड करना है हमें? मैक्सिमम स्लोप and maximum डिफ्लेक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि अनसिमेट्रिकल लोडिंग का मैंने नहीं लिया था पहले भी। जब भी अनसिमेट्रिकल लोडिंग का आया, हमने सिमेट्रिकल लोडिंग का लिया था। अनसिमेट्रिकल लोडिंग का ये प्रॉब्लम लेंगे हम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट बिट लेंथी आल्सो। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं सेपरेट, सिर्फ इसका एक लेक्चर आपको सेपरेट दूं, लेकिन इसको चलो मैं इसके साथ कंबाइन करता हूं। लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है। इसलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि टुडे आई विल टेक द टू प्रॉब्लम्स। वन प्रॉब्लम इज कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड एंड द अदर प्रॉब्लम इज अनसिमेट्रिकल लोडिंग, राइट, अनसिमेट्रिकल लोडिंग। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने पहली प्रॉब्लम को कर लिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे। अब देखिए ये अनसिमेट्रिकल लोडिंग, इसको मिटा देते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका this is your beam. I will say this is your beam. Yes. This is your A and this is your B. Suppose one load is acting on the beam here at this point. थोड़ा आगे कर लीजिए। At this point, the load 12 kilonewton. The load is how much? This is 12 kilonewton load is acting at this point here. तो जहाँ से जहाँ तक भी डिस्टेंस दिया है, the distance from here to here कितना है? 3 मीटर। and the distance from here to here, this distance is 1 meter. The load कितना है? 12 kilonewton. You understand? So this is the problem. अब देखो ये आपका रिएक्शंस हो गया। This is your reaction force here and this is your reaction force here, that is RA and RB. You understand? So this is your reaction force. Now draw the elastic curve here. अगर मैं elastic curve इसकी ड्रा करता हूँ, if I will draw the elastic curve, so it will be like this. Suppose करो
So this is the elastic curve, right? तो मैं अगर पॉइंट ए से इसका एक टेंजेंट खींचता हूँ एट पॉइंट ए, and this you can say C points. You understand this? So our first step is to draw the bending moment diagram. But here, first I have to calculate the moment at point A, C and B. Then only I can draw the bending moment diagram. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूवमेंट निकाल लेंगे. मूवमेंट निकालने के लिए फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस. क्योंकि व्हेन दिस लोड इज एक्टिंग लाइक दिस, तो ये क्या होगा, इसमें रिएक्शन फोर्सेस होंगी, राइट? तो ये लो, दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम अनसिमेट्रिकल लोडिंग. यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो बीम आपकी है ये क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अनसिमेट्रिकल लोडिंग. ये मैंने जब सिंपली सपोर्टेड बीम सिमेट्रिकल लोडिंग आपको लेक्चर दिया था तो मैंने ये छोड़ा था, मैंने कहा दिस आई विल डिस्कस लेटर ऑन. सो दिस इज द प्रॉब्लम टुडे आई हैव जस्ट टेकन अप हियर. सो दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम विद अनसिमेट्रिकल लोडिंग. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है आर ए. देखिए रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम. आप क्या करेंगे, सिग्मा एम पहले आप ले लीजिए, सिग्मा एम दिस इज इक्वल टू 0, राइट? टेकिंग सिग्मा एम इज इक्वल टू 0. तो सिग्मा एम को हम 0 लेंगे. टेकिंग मीन्स सिग्मा एम दिस इज इक्वल टू 0. द मूवमेंट ऑफ समेशन ऑफ द मूवमेंट दैट इज इक्वल टू 0. तो इसमें क्या आएगा आपका आर ए इंटू 4 प्लस
दिस इज आपका सिग्मा एम ए कर ली, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0, मूवमेंट एट दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट के ऊपर 0 ले रहा हूं, तो ये क्या आएगा इसका मूवमेंट 12 इंटू 3, सो दिस इज 12 इंटू 3, राइट, माइनस आर ए इंटू 4, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये 12 इंटू 3, तो माइनस आर ए माइनस आर ए इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर आर ए कितना आ गया आपका, therefore RA is equal to 9. What is your RA? RA, this is equal to so RA, this is equal to 9 किलो न्यूटन। ये पता नहीं क्या हो गया पेन को, आर ए इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। इसी तरीके से आर बी कितना आएगा 3 किलो न्यूटन, बिकॉज द टोटल लोड इज 12 एंड आर ए और आर बी की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, राइट। तो यही आपको वैल्यू चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे, मूवमेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो एम ए जो आपका मूवमेंट था एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं मूवमेंट सी की बात करूं, सो व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट सी, मूवमेंट एट पॉइंट सी दिस इज इक्वल टू तो मूवमेंट एट सी कितना होगा, मूवमेंट एट सी दिस इज इक्वल टू कितना, आर ए कितना है आपका 3 है, 3 किलो न्यूटन। तो मूवमेंट एट सी कितना होगा 3 इंटू 3 मीन्स 9 किलो न्यूटन मीटर। एंड मूवमेंट एट डी, एम डी, मूवमेंट एट डी कितना होगा ये, व्हाट इज योर मूवमेंट एट डी, सॉरी नॉट डी बट मूवमेंट एट बी, मूवमेंट एट बी, अगर मैं मूवमेंट एट बी की बात करूं कितना होगा 3 इंटू 4, द डिस्टेंस 3 + 1 4, ये आपका होगा 3 इंटू 4 माइनस, ये ऊपर था ये माइनस आएगा 12 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यू अंडरस्टैंड, सॉरी 12 इंटू 1, तो ये सारे का सारा क्या है 0 आ गया। तो ये आपका एम सी, ये आपका एम बी, मूवमेंट एट बी, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इसकी हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। रिएक्शंस आपने फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम ड्रा करेंगे इसका, राइट। तो इसके ऊपर मूवमेंट क्या था 0 था, जहां से ये आया। एमसी पे मूवमेंट क्या था 9 किलो न्यूटन मीटर था, तो मैं इसको यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, आई विल जॉइन दिस, राइट। ये आपका 9 किलो न्यूटन मीटर, राइट। यस दिस, और जे आपका फिर 0 आ गया, राइट। तो जे आपका जो इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट था, इस पॉइंट के ऊपर एट सी, ये आपका ए है, अगर ये सी एंड दिस इज बी, ये कितना था 9 किलो न्यूटन मीटर, यू अंडरस्टैंड। ये आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गया, दिस इज योर
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देख लीजिए, जहाँ तक आपका कितना है 3 मीटर, और जहाँ तक आपका है 1 मीटर, राइट। तो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट। तो ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गया आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अपना बना लिया और रिएक्शंस वगैरह भी निकाल लिए, सारी चीजें निकाल के। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं, राइट। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो लेट अस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम स्लोप चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम स्लोप हमारी, बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल लोडिंग, एंड इस केस में हमारी मैक्सिमम स्लोप जो है थीटा ए के ऊपर भी हो सकता है और मैक्सिमम स्लोप हमें थीटा बी के ऊपर भी हो सकता है, राइट। सो वी डोंट नो दैट वेयर इज द स्लोप मैक्सिमम, वेदर इट इज एट द पॉइंट ए और एट द पॉइंट बी, वेयर इट इज मैक्सिमम, राइट। दूसरा, व्हेन वी अप्लाई द मोर थ्योरम, तो मोर थ्योरम में हमें क्या चाहिए कि इफ आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ वन पॉइंट, आई मस्ट हैव द स्लोप ऑफ अदर पॉइंट। मुझे दूसरे पॉइंट की स्लोप चाहिए, राइट। जैसे मैं ये कहूँ, ये मोर थ्योरम में क्या इस्तेमाल करते हैं? थीटा ए माइनस थीटा बी, थीटा ए माइनस थीटा बी, जहां मैं ले लूं आर, थीटा ए माइनस थीटा सी, जब मैं ले थीटा सी, थीटा ए माइनस थीटा बी, आर थीटा ए माइनस थीटा सी, राइट। तो मुझे बताइए इस केस में ना मेरे पास थीटा ए है, राइट, और जहां मैं ले लूं यहां पे थीटा बी माइनस थीटा सी, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स आई एम हैविंग हियर। मेरे पास ना थीटा ए की वैल्यू है, ना थीटा बी मेरे पास वैल्यू है, ना मेरे पास थीटा सी की वैल्यू है। बिकॉज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स क्या होता था, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे अगर बीम में, तो एक पॉइंट की हमारे पास वैल्यू होती थी। जैसे इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम की बात करता हूं, तो कैंटिलीवर बीम का जो फिक्स एंड होता था, एक एंड आपका फिक्स होता था और दूसरा एंड दैट इज द फ्री, एंड यू नो द स्लोप एट द फिक्स एंड इज 0। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को लेके इक्वेट करते थे और एक की स्लोप को हमारे पास होती थी, उसको हम 0 कंसिडर करते थे, 0 ले लेते थे, और दूसरे की स्लोप we will calculate by using the Morse theorem, Morse first theorem. But the problem here, what is the problem here? Here is a very acute problem what we are facing, because we don't know the slope of at any point on the beam. ना ही मेरे पास A की स्लोप को मुझे मालूम है, ना ही मेरे पास B की स्लोप मालूम है। तो अगर मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं बीम के ऊपर, उनकी स्लोप मालूम ही नहीं है, then how we can use the theorem number first of the Moore principle? हम ये theorem 1 को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Because in the theorem 1, that is the change of the slope. This is equal to the area of the bending moment diagram divided by EI. But here I am not knowing the slope of any point, so I cannot use the theorem number first. You understand this? ये पहला पॉइंट देखिए, अमूमन हम जो स्लोप निकालते हैं, जितनी भी क्वेश्चन आज तक पीछे किए मैंने, जितनी भी स्लोप निकालते हैं, हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग द थ्योरम फर्स्ट ऑफ द मोर प्रिंसिपल। हम मोर का थ्योरम फर्स्ट को इस्तेमाल करके क्या करते थे? हम स्लोप निकालते थे। उसमें क्या था कि चेंज ऑफ द स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट, दिस इज इक्वल टू द एरिया AB अपॉन EI। बट हियर in this case, in this problem, unsymmetrical loading, आपका ये सारा कंसेप्ट जहां पे चेंज हो जाएगा। You cannot calculate the slope by using the Moore's first theorem. Why? Because we are not knowing the slope of any point on the beam. हमें ये जो बीम है आपकी,
इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप मालूम नहीं है, सो वी कैन टेक द डिफरेंस ऑफ द स्लोप, सो वी कैन नॉट यूज द थ्योरम फर्स्ट, क्योंकि हम डिफरेंस ले ही नहीं सकते, वी आर नॉट नोइंग द स्लोप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्लोप निकालने के लिए लेट अस अप्लाई द थ्योरम नंबर सेकंड। अब हम थ्योरम नंबर सेकंड को अप्लाई करते हैं, लेट अस अप्लाई द थ्योरम नंबर सेकंड, राइट। तो हम जो इस तरीके से भी कैलकुलेट द स्लोप, सो वी विल अप्लाई थ्योरम नंबर सेकंड। अब देखिए जो आपका थ्योरम सेकंड था, ये जो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अब जो थ्योरम सेकंड था, इन द थ्योरम सेकंड मोर्स थ्योरम सेकंड जो हमारी थी, मोर्स सेकंड थ्योरम, मोर्स सेकंड थ्योरम क्या थी, राइट। अगर हम मोर की सेकंड थ्योरम इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, ये जो एट पॉइंट ए से मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं इलास्टिक कर्व के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। सो आई हैव ड्रॉन द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द इलास्टिक कर्व एंड देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बी on the elastic on the tangent, जो the point B which is on the elastic curve, so the deflection of the point B on the tangent, ये जो deflection of the point B on the tangent होगा, this that is called the deflection, that is equal to TBA। मैं ले सकता हूं TB, B is the point here, I am taking TBA, right, TBA। so this is TBA is what, TBA is the deflection of the point B to the point B which is on the elastic curve, the deflection of that point on the tangent which I have drawn from the point A on the elastic curve, you understand। so this distance, this is called the TBA or the deflection you can say, right। तो अगर हम देखिए इसको, अगर हम देखिए तो वी गॉट द राइट एंगल ट्राइंगल, वी गॉट द राइट एंगल ट्राइंगल, और इन द राइट एंगल ट्राइंगल यू नो, इन द राइट एंगल, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। मैं अगर इसको बी डैश कर लेता हूं, बी डैश upon AB, this is equal to tan theta, right। so what is BB dash, therefore BB dash, this is equal to TBA, and what is AB, 3 और 1 4, right। TBA, this is equal to tan theta A, but you know that the theta is very small, theta A is very very small, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, therefore TBA upon 4 is equal to theta A, right, you understand this। तो थीटा ए ही हमें निकालना था, तो थीटा ए हम निकाल सकते हैं if I know the value of TBA, right। अगर मुझे इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाए, या हमें प्रोसीजर पता चल जाए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए, दैट इज द स्लोप एट पॉइंट ए, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट के ऊपर स्लोप को कैलकुलेट कर सकता हूं इफ आई नो द वैल्यू ऑफ थीटा ए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें थीटा ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे ये लिखा है इसने, थीटा ए इज इक्वल टू टी बी ए अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू थीटा ए,
TV upon 4, अब आ जाइए TBA। TBA ये निकालना है, तो TBA निकालने के लिए TBA इज व्हाट, दैट इज द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन हम कैसे निकालते हैं, यू नो दैट। TBA निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया BA इंटू एक्स बी बार। तो मैं क्या लूंगा, टेंजेंट मैंने इस पॉइंट से लिया है, तो मेरा होगा इस पॉइंट से एक्स बी बार डिवाइडेड बाई ई आई। इज देयर एनी प्रॉब्लम? दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज क्लियर टू यू? राइट। अब देखिए एरिया बी ए हमने निकालना है, इधर देख लेता हूं। तो अगर एरिया बी ए की बात करूं, एरिया बी ए किसके बराबर होगा, ये ट्राइंगल जो 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, इन दोनों का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा एरिया होगा, राइट। तो इसमें हम इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर TBA मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, दैट इज ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 into 3। What is this height? What is this height? This is the bending moment at this point। और ये कितना है 9 किलो न्यूटन मीटर। तो इसकी हाइट जो ट्राइंगल की आपको मिलेगी वो कितनी है 9 किलो न्यूटन मीटर, और ये कितना है 3 मीटर। तो ये इससे अगर ऐसे करें, पहले उधर से करते हैं हम, तो ये आपका आएगा 1/2। व्हाट इज द डिस्टेंस 1 into 9, राइट। अच्छा, अब आ जाइए एक्स बी बार। एक्स बी बार कैसे लेंगे हम इसमें, देखिए ये आपका सेंट्राइज्ड है, दिस इज द सेंटर। तो ये अगर इसका सेंट्राइड ये है, तो जहां से जो जहां तक डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस आई विल टेक। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2/3 into L, ये आपको पता है। अगर इधर से जाएंगे हम, जो वर्टिकल हाइट वाला है इसको हम लेते हैं L/3, ये जो जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर ये सेंट्राइड होगा ट्राइंगल में, और अगर इधर से लेंगे तो 2/3 into L। तो L क्या है इसमें 1 है, तो आप लिख सकते हैं 2/3 into 1, दिस इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा ये आपका 2/3 आएगा, इसको कर लीजिए आप 2/3, राइट। प्लस अब आइए इस एरिया में, ये एरिया कितना होगा 1/2 into 3 into 9 into, अब देखिए डिस्टेंस कहां से लेना है, जे आपका है इसको, इसका जे आपका CG है, जे आपका CG है, इस पॉइंट के ऊपर इसको बिठा देते हैं, ये आपका CG है, और जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस आई वांट, राइट। अब मुझे बताइए जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना होगा L/3, कितना होगा L/3। ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस L/3 होगा, प्लस जहां से लेके जहां तक कितना है +1 मीटर, यही है ना। अब देखिए L कितना है, व्हाट इज L हियर, L कितना है, व्हाट इज L, जहां से लेके जहां तक L है आपका 3, तो ये आपका आ गया 3/3 + 1, तो दिस इज 2 मीटर। तो आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस आपका कितना है 2 मीटर है। ये क्लियर हो गया। हमें जो दिस पॉइंट आर CG, हमें CG से XB बार ले रहे हैं। What we are taking here XB bar. I am not taking here XA bar. Don't confuse yourself. Why I am not taking XA bar? Reason is that the tangent I have taken, the tangent that is taken, that is from the point A. और जिस पॉइंट से हम टेंजेंट लेते हैं उसके अपोजिट जो पॉइंट होगा, या एट फॉर डिस्टेंस जो पॉइंट होगा, वहां से हम क्या लेते हैं, जो सेंट्रॉइड
एक्स ए बार और जहाँ एक्स बी बार की जो वैल्यू, एक्स बार की जो वैल्यू है, हम उसके अपोजिट पॉइंट से लेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो मुझे ये सारी जो वैल्यूज थी फ्रॉम दिस पॉइंट टू आई हैव टू कैलकुलेट। तो हमें एक्स बी बार, पहले मैंने इसका ले लिया इस पॉइंट से, अब मैंने इसका ले लिया। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका आ गया इंटू 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इंटू ई आई, राइट? ये 2 और 2 कब के कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 कैंसिल, राइट? So therefore TBA is equal to 27 plus 30 अपॉन EI क्या है 10⁻⁴। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 30 इंटू 10⁻⁻3, राइट, मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? ये हमें TBA की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। दिस इज क्लियर टू यू? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? TBA। तो देयरफॉर थीटा ए क्या था? थीटा ए क्या था? ये लिखा ना मैंने ऊपर, थीटा ए दिस इज इक्वल टू TBA अपॉन AB। AB क्या था? TBA अपॉन 4। AB क्या है? 4 है। तो देयरफॉर TBA कैलकुलेट कर लो आप। TBA दिस इज इक्वल टू 3.0 10⁻³ अपॉन 4, राइट? So this is equal to 0.75 into 10⁻³ radians. You understand? तो ये हमें स्लोप मिल गई एक पॉइंट की, दैट इज थीटा, नॉट TBA, दिस इज थीटा ए, दिस इज थीटा ए। यू अंडरस्टैंड? तो हमें एट पॉइंट ए की अभी आई गॉट द स्लोप। अब जहां पर भी मेरा आई कैनॉट से द स्लोप इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए, इसलिए मुझे मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे पॉइंट बी का भी स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू सी वेदर द स्लोप इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। तो जहां तक क्लियर है आपने ये स्लोप पॉइंट ए का फाइंड आउट किया, इसको नोट कर लीजिए, और थीटा बी का स्लोप एट पॉइंट बी हम निकालते हैं। अब स्लोप एट पॉइंट बी निकालना है तो यूज मोड्स फर्स्ट थ्योरम, राइट? क्या थी? थीटा ए माइनस थीटा बी, दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी इंटू अपॉन EI, राइट? तो इसमें निकाल लीजिए व्हाट इज योर थीटा ए। थीटा ए अभी मैंने निकाला, दिस इज 0.75 10⁻³ एरिया ए बी क्या आएगा इसका? निकाल लो, दोबारा जमा कर लो। 1/2 3 इंटू 9, 1/2 3 इंटू 9 प्लस 1/2 1 इंटू 9, राइट, अपॉन EI।
or 0.75 into 10 to the minus 3 माइनस थीटा भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 4 into 9 EI कितना था 10⁴, राइट। तो जहां से आपकी थीटा की बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, सो थीटा बी कैलकुलेट करो बाय सिंप्लीफाइंग दिस, सो यू विल गेट theta b, this is equal to minus 1.05, this is minus 1.05 10 raised to minus 3 radian. So here you have seen that theta b is maximum. You don't see the sign here, you only see the magnitude. जो हमारा थीटा ए था वो था हमारा 0.75 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 1.05 इंटू 10⁻³. सो दिस इज मैक्सिमम स्लोप. कहां पे मैक्सिमम होगी? एट पॉइंट बी. सो दिस हियर इज द मैक्सिमम स्लोप, that is 1.05. this is the magnitude is more than that, this 0.75, so slope is maximum. Now the क्वेश्चन है इसके, जहां पे पॉजिटिव साइन है, जहां पे पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन है, तो जहां पे अगर एक पॉइंट के ऊपर इसका एंगल क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे पॉइंट के ऊपर इसका जो एंगल होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो दिस इज द रीजन कि इफ हियर इज द पॉजिटिव एंगल at point A the angle is positive, so at the point B the angle is negative. You understand this? So maximum slope you have calculated and that is at the point B, and this is this much. I think concept is clear here. Here you have seen that maximum slope we have not calculated by using the first theorem, Moore's first theorem. Here I have used the Moore's second theorem first and then calculating some values there, and then I have calculated the slope of that. You understand? So J आपका था, this is the how to calculate the slope, maximum slope in this case. I think your concept is clear. Now I will take up this maximum deflection. Maximum deflection इसमें हम कैसे लेंगे? Just see it.
तो एरिया एडी क्या आएगा, सेम। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एरिया एडी, तो मैंने पहले भी निकाला। बेस क्या है इसका, x, हाइट कितना है 3x, एक्स ए बार। अब देखिए एक्स ए बार निकालना है। मैं इस पॉइंट के ऊपर इसका सी जी लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट पेन से लेते हैं। ये आपका सी जी। हमें क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस जे फाइंड आउट करना है, राइट। जे आपका होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा 2/3। आप देखिए जहां से जो ये वाला साइज होता है, जहां पे जीरो साइज के ऊपर कहते हैं, जहां पे ये ट्राइंगल मिलता है, उस साइड से अगर हम देखें तो इसका सीजी का डिस्टेंस होता है 2/3 इंटू एल, राइट। क्या होता है 2/3 इंटू एल। तो ये क्या बन जाएगा 2/3 इंटू एल, क्या है इसमें एक्स, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी जी टू पॉइंट ए क्या है, ये डिस्टेंस हो गया एक्स ए बार। एक्स ए बार दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका आ गया 2/3 इंटू एक्स अपॉन 10⁻⁴। तो x की वैल्यू आपने निकाली है, x की वैल्यू आपने निकाली है 2.236। तो आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू यहां पे, जहां पे पुट करके x की वैल्यू और बाई मैक्सिमम कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए मुझे व्हाट इज योर बाई मैक्सिमम, राइट। सो बाई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट करो पहले, फर्स्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ x। ये कर लीजिए आप इसको 1/2 तो बाई मैक्सिमम आपका आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो। कितना है ये बाई मैक्सिमम, दिस इज 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। ये आपका बाई मैक्सिमम आ गया। जहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉट, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इस केस में हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग, in case of unsymmetrical loading, we are not knowing that the maximum deflection is where. So here we will assume that maximum deflection at some point. So suppose I have taken one point, that is point D, that is between A and C, and here I assumed there is the maximum deflection, right? तो इसको करने के लिए this point is at the point X, तो हमें X का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट डी के ऊपर कंसिडर करते हैं देयर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सो इट मींस दैट एट दिस पॉइंट योर स्लोप दैट इज 0। स्लोप क्या होगी 0 होगी। तो जहां पे हमें 2 पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए एंड बी, और जहां पे हम मोर का फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे, थीटा ए माइनस थीटा बी, सॉरी थीटा ए माइनस थीटा डी, दिस इज इक्वल टू एरिया ए डी अपॉन ई आई। तो एरिया ए डी हम क्या लेंगे, दिस मच एरिया, जहां से प्रोजेक्शन ड्रा करो, जहां से लेके जहां तक इसकी लेंथ x है, और ये हाइट मैंने कैलकुलेट की बाय यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, जहां से आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर।
अब x की वैल्यू आपके पास है, तो बाई मैक्सिमम मैंने अज्यूम किया कि एट पॉइंट डी है, तो इसमें निकालेंगे एरिया ए डी इंटू एक्स ए बार अपॉन ई आई, राइट। तो एरिया ए डी तो हो गया आपका, एक्स ए बार निकाल दिया, एंड दिस, तो x की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द बाई मैक्सिमम, राइट। सो आई थिंक this is all about your this lecture, your concept regarding to the cantilever beam when the load is UDL and the unsymmetrical loading in case of simply supported beam. These are two very important concepts which I want to give you. So आज जो मेरा लेक्चर था इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर कंप्राइज था, दो प्रॉब्लम्स मैंने डिफरेंट किया है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं सभी को कहूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी किस्म की आप प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई हैव गिवन द फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ दिस। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट हियर। सो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, और जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद होगा दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। This is all today. Okay.